السلام علیکم. 8th کلاس. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام میم. چلو بیٹا، آج کا لیسن ہے، آپ کو میں نے پڑھایا ہے یہ سیتا جی کی آہوزاری. آج میں آپ کو دوبارہ پڑھا رہی ہوں. تو میں پہلا پیج جو ہے وہ میں ریڈنگ کروں گی اس کی، اور آپ سنو تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. چلو شاباش. سیتا جی کی آہوزاری، اور اس کا لکھنے والا جو ہے وہ ہے رام چندر جی. جب رام چندر جی بنواس جاتے ہیں، یعنی کہ جب اس کو سوتیلی ماں نے اس کے یہ باپ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے ایک حکم کی تعمیل کروں گا. تو اس نے اسے کہا کہ بتائیے وہ کون سا حکم ہے جس کی مجھے تعمیل کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ رام چندر جی کو 14 سال کے لیے بنواس بھیجیے، جنگل میں بھیجیے، اور میرے بیٹے کو آپ تخت تاج دیجیے. تو سیتا جی نے ان کو اپنے، تو جب رام چندر جی بنواس جاتے ہیں تو سیتا جی نے اس کو بہت ضد کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. مگر رام چندر جی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اس کے ساتھ، وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ جنگل میں سیتا جی کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا تھا. جنگل کی زندگی مشکل ہوتی ہے. اس نظم نے شاعر نے اب سیتا جی کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ کہا کہ سیتا جی کے کیا خیالات تھے جب رام چندر جی بنواس گئے. ہمراہ اب میں یہ پڑھ رہی ہوں، جتنا میں آپ کو آج پڑھاؤں گی اتنا میں پڑھوں گی. ہمراہ اپنے بن مجھ کو ساتھ ناتھ لے چلو، ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو. نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا. راتیں نہ کٹ سکے گی اکیلے فراق کی، کٹیا اور جس نے جیلی ہو جیلے فراق کی. قسمت نے جب سے باپ کے گھر سے جدا کیا، سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدا. پتلی کی طرح آنکھ میں شام و سحر رہی، پہلو میں بن کے صبر و شکیب جگر رہی. دکھ آج تک سہا نہ غم انتظار کا، مجھ پر کرم رہا ستم روزگار کا. تو یہ تھے 7 اشعار. یہ جو سیتا جی کی آہوزاری میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اس کے یہ 7 اشعار ہیں. یہ 7 اشعار میں آپ کو سمجھاؤں گی. آپ کی ان 7 اشعار میں سیتا جی رام چندر جی سے کیا کہتی ہے. سیتا جی کہتی ہے ہمراہ کو ساتھ، اور ساتھ بن گو جنگل. ناتھ کہتے ہیں شوہر کو، آقا بھی کہتے ہیں شوہر کو. تو ریکھا نشان، جو پاؤں پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریکھا، پاؤں کی ریکھا. یہاں سیتا جی پہلے شعر میں رام چندر جی سے کہتی ہیں کہ سیتا جی رام چندر جی کسے کہتی کہ اے میرے آقا، اے میرے شوہر، مجھے اپنے ساتھ جنگل میں لے چلو. میں بھی آپ کے ساتھ جنگل میں آنا چاہتی ہوں. میں تمہارے قدموں کی لکیر ہوں اور تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہوں. یہ کہتی ہیں رام چندر جی سے سیتا جی. سیتا جی کہتی ہیں رام چندر جی سے اے میرے آقا، اے میانے خاندار، مجھے اپنے ساتھ باس لے چلو، جنگل میں مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلو.
मैं तुम्हारे पावों की लकीर हूँ, रेखा हूँ, मैं बुझस चानन खोरन हिज रिख, बह हेक नह ज़्या बगैर जिंदा रूजित कहें तन। यह वन गो शारस मज रामचंद्र जी सीता जी। पे दोम शार नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। ये दूसरा शार है। अब नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं शीशा दिल, दिल का नाजुक होना, जो इंसान का दिल होता है वो बहुत शीशे की तरह नाजुक होता है। और जी कहते हैं दिल को, छूटना कहते हैं साथ छोड़ना, छूटना कहते हैं साथ छोड़ना। सीता जी कहती हैं, ऐ मेरे आका, अगर तुम्हारा साथ छूट जाएगा, अगर मैं तुम्हारे बगैर रहूंगी तो मेरा जो नाजुक सा दिल है वो टूट जाएगा। तो मेरा दिल, उससे मेरे दिल पर बुरा असर पड़ जाएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। सीता जी वन शारस मज रामचंद्र जी नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा। दपान मोन यह दिल तूता नाजुक क्यूता शीश अगर शीशा जीर लगान सह फुटान, मोन दिल तसा फुटे, छूटा तुम्हारा सा, अगर न मे पानस सिकन तो यह मोन दिल हसा फुटे, युस जन शीशिक पटन नाजुक छु। पे त्रेम शार, त्रेम शारस मज वन रातें न कट सकेगी अकेले फराक की, कुटिया वो जिसने जेली हो जेले फराक की। रातें न कट सकेगी अकेले फराक की। कटना को गुजारना, कटना को गुजारना। फराक कहते हैं जुदाई को, जेलना कहते हैं बर्दाश्त करना, गवारा करना, जो जिसको बर्दाश्त होता है। सीता जी कहती हैं कि ऐ मेरे आका, अपने खावन से कहते हैं ऐ मेरे आका, मैं तुम्हारे बगैर रातों को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं तो अपनी रातें तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकूंगी। जुदाई के दिन गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है, मुश्किल है। मैं जुदाई के दिन नहीं काट सकूंगी, मैं जुदाई आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। वन सीता जी पनिस खानदारस दपान अगर मे निक अगर मे चोन साथ आसन कहें तन, तो यम जन माने रात आसन तिम आसन बड़ मुश्किल रात, बह हेक तिम गुजारित कहें तन। जुदाई हंद दह हेक बह यह सा गुजारित कह, यह जन माने खतर नामुमकिन छु। पे ब्या शार, चूरिम शार, किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, सवामी मुझे न तुमने नजर से किया जुदा। ये दूसरी बात कहती हैं अब रामचंद्र जी से। किस्मत बोलते हैं तकदीर को, किस्मत बोलते हैं तकदीर को। तो जुदा कहते हैं अलग, सवामी कहते हैं शौहर को, आका को। यहाँ ये कहती हैं सीता जी अपने शौहर से कि ऐ मेरे आका, जब किस्मत ने मुझे बाप के घर से जुदा किया, यानी जब मुझे बाप के घर से जुदा होना पड़ा, यानी कि जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने बाप से घर से अलग हुई, तब से आपकी नजरों से मैं कभी भी दूर नहीं रही हूँ। तो अब मैं 14 साल तेरी नजरों से ओझल नहीं रह सकती हूँ, तेरी नजरों से अलग नहीं रह सकती हूँ, ये मेरे लिए नामुमकिन है। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं जब से मैं अपने घर से विदा हुई है, जब से मैंने अपना घर छोड़ा, ये मैं पन घर त्रो, जब गयस पन्ने घर नि जुदा, ऐ म्यानि खानदार, मुझे ना तुमने जा पन्न नजर नश दूर, बस हमेशा चान नजरन ब्रोट कन रोजान, बह हेक 14 वरी हेक बह चा बगैर गुजारित कहें तन। पे ब्या शार, ब्या शार, पुतली पुतली की तरह आंख में शामो सहर रही, पहलू में बन के सब्रो शकीब जिगर रही। तो यहाँ और एक बात अब सीता जी बोलती है अपनी ये शौहर से, यहाँ पुतली कहते हैं आंख का जो अंदर, आंख के अंदर होता है गोल वाला हिस्सा, उसको कहते सलवार या लकुट गोल बनाई तथ पुतली, सियाह रंग आसान, सहर को सुबह, शकीब सब्र, शकीब वन सब्रस,
वचना सीता जी रामचंद्र जी दपास ऐ मेरे आका मैं सुबह शाम तेरी आंखों की पुतली की तरह रही, यानी कि तुम्हारे आंख के करीब रही, तुम्हारे आंखों के सामने रही मैं, और हमेशा आपके पहलू में सब्र के साथ सुकून के साथ मैंने जिंदगी गुजारी बसर की। अब मेरी जुदाई कैसे गुवारा कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूं, गुवारा नहीं कर सकूंगी। सीता जी छ वनान पन्निस खानदारस ऐ म्यानि खानदार बह सुबह शाम आसान तिथ अचन हूं सो अंदर पुतली इंसानस हमेशा सतन, तो बह रूदस हमेशा चानिस हसा यह चान पहलुवन मज सब्र सान सुकून सान इत्मीनान सान कर मे जिंदगी बसर। बह हेक अब वन हेक बह चवा गर जिंद रूजित कहें तन, बह हेक यह जुदाई चन बर्दाश्त कर कहें तन। तो यह वन पन्निस खान, तो वन दुख आज तक सहा न गम इंतजार का, मुझ पर करम रहा सितम रोजगार का। तो वह वन ब्याक शार तो अत मन दुख गो गम, दुख गो गम, सहा गो बर्दाश्त किया, गवारा किया, करम गो मेहरबानी, सितम गो जुल्म, रोजगार गो जमाना। बे वन बह दुख गो गम, यह सा ये गवारा करना गो बर्दाश्त करना, सहना, बर्दाश्त करना, गवारा करना, करम मेहरबानी, सितम जुल्म, रोजगार, रोजगार जमाना, जमाने का गम। तो ये थे ये जो शार है, जो सातवां शार है, छठा शार है ये, तो इसमें ये अल्फाज माने इस्तेमाल हुए हैं जो मुश्किल अल्फाज है। तो दुख आज तक सहा ना गम इंतजार का, सीता जी अपने आका से बोलते हैं मैंने आज तक आराम राहत के दिन बसर किए हैं, जो भी जिंदगी मैंने गुजारी है वो मैंने आराम से गुजारी है, तो और सुकून के साथ गुजारी, और कभी भी इंतजार का गम मुझे नहीं रहा, मैंने कभी भी तुम्हारा इंतजार नहीं किया है। तो जमाने मुझ पर बहुत सारे मेहरबानियां की, जमाने की सितम से मैं दूर रही हूँ, मैंने जमाने ने मुझ पर कोई जुल्म नहीं किया, कोई सितम नहीं किया, मैं जमाने के दुख और तकलीफ से दूर रही हूँ। पन्निस खानदार वन सीता जी मे हसा वुनिक तान जिंदगी में गुजर दुख आज तक सहाना गमी मे जात यह हसा ये इंतजार पेमुत कर, मे जात से प्योरमुस जां तो आज तान तो मुझ पर करम रहा, मे कर हमेशा कर वक्तन मे पे मेहरबानी, तो वक्त रूद मे साथ दिवान, तो बह हेक वन चुन जुदाई बर्दाश्त कर कहें तन। जमाना जमाना जन वक्त सितम जुल्म तम पे मे बर्दाश्त कर, मगर वन वन हेक बह जुल्म सितम बर्दाश्त कर कहें तन। आज पढ़ने में तुम शार अशार, तो मे उम्मीद कि तुम ये फिक्री तरीम असल पे, मे वन सी मुश्किल अल्फाजन हंद माने तह वन मे तुम तो आज गो क्लास थोड़ा लेट, क्योंकि मे कन्फ्यूजन टाइम, आज गो मे कन्फ्यूजन टाइम यम कि क्लास गो लेट, तो यह हसा ये पगह पगह चंद्रवार तुम इम्तिहान, अब क्लास नहीं होंगे आपके, अब आपका इम्तिहान है 16 तारीख को, आपको उर्दू का पेपर है 16 तारीख को वो पेपर, तो आपको डेट शीट मिल जाएगा, टाइमिंग क्या होगी, कब होगा, तो आपका एग्जाम है। तो अब आप इंशाल्लाह सारे जो U1 U2 टर्म का एक सिलेबस है उसमें आप अच्छी तरह से तैयारी करेगी। आपको समझ में आ गया, समझा आपने मैंने क्या पढ़ाया? हाँ, आया समझ में? यस मैम। चलो बस आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज। यस मैम। चलो।